Greetings of the day, dear learners. Today, in the 11th Standard English class, we are taking the poem Childhood. Earlier in the two classes, we have discussed about the poem meaning, its stanza, and the model reading. I think you have learned it better. And today, we are taking another important content of this poem that is called poetic devices. Poetic devices or figures of speech. First of all, I will define the poetic devices. A poetic device is a literary tool that writers use to enhance the meaning of their work by manipulating the sounds, words, and phrases. Poetic devices can be used to create rhythm, evoke emotions, and convey meaning. So, in short, I can say that poetic devices are an important tool in the hand of a poet or a writer to make their work impressive and to create everlasting effect in the mind of the readers. In is, there is an old proverb like a picture is worth more than a million words. So same poetic devices are similar to this proverb. We can use the proverb uh, for for poetic devices also. So let us take the stanza one. Okay, in the stanza we will read the stanzas line by line, and we will find the poetic devices used in those stanzas. Marcus Nathan, who was a Norway based writer, has used these poetic devices very smartly. So let us take the first stanza. Uh, when did my childhood go? So here the poet is asking a question to the readers. When did my childhood go? Here the poet really doesn't want any answer. He just used a rhetorical question. Rhetorical question. A rhetorical question is that when the poet used to create an impression uh, in his stanza or in his poem. Second line, was it the day I ceased to be 11? बेटा जी आप साथ साथ अपनी नोट लेके बैठना, ताकि आपको जो मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट लाइन में आपको ये पोइटिक डिवाइस है, सेकंड लाइन में ये पोइटिक डिवाइस है, तो आप साथ साथ अपना बुक में लिखते रहो. बुक के साथ लिख लो या फिर अलग से कॉपी में लिख लो. ओके, सो वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11? सो हेयर वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11, और वॉज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट हेल एंड हेवन. तो यहाँ पे कई सारी पोएटिक डिवाइसेस का यूज हुआ है. जैसे कि यहाँ पे वॉज इट द और वॉज इट द, दूसरी और तीसरी लाइन में ये लगातार यूज हुए हैं. तो इसको बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलते हैं एनाफोरा. क्या बोलेंगे? एनाफोरा. एनाफोरा, व्हाट इज एनाफोरा? रिपीटिशन ऑफ फ्रेजेस in the beginning of two consecutive lines in the anaphora. So repetition of phrases क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स. तो यहाँ पर वॉज इट द, यहाँ पे 3 वर्ड हैं और ये एक फ्रेज बना रहे हैं. तो इस लगातार दोनों लाइनों में ये फ्रेज यूज हुआ है. तो इसके लिए ये, तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड एनाफोरा. नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे एक और पोएटिक डिवाइस हुई है, जैसे हेल एंड हेवन. हेल और हेवन दो अपोजिट वर्ड्स हैं. जब अपोजिट वर्ड्स को एक ही लाइन में साथ साथ यूज किया जाता है तो उसको बोलते हैं एंटीथेसिस. क्या बोलेंगे? एंटीथेसिस. हेल एंड हेवन. और व्हेन वी यूज टू अपोजिट वर्ड्स इन अ सिंगल लाइन, दैट इज कॉल्ड एंटीथेसिस. एक और इसी में हमारी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है, सी लाइक एच एंड एच. सो हेयर
the sound of ha is used. तो the poetic device here used is alliteration. Alliteration means the occurrence of same letter or sound at the beginning of a closely connected words. तो that is called alliteration. हिंदी में बोलेंगे अनुप्रास अलंकार. Okay, so in the hell and heaven, HH sound is repeated here. So alliteration is used here. Let us take to the next stanza. And therefore could not be was there that day. So एक और चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे बेटा, जब भी यहाँ पे पोइटिक डिवाइसेस आप लोग एलिट्रेशन हमने देखा यहाँ पे एनाफोरा और एंटीथेसिस, उसके अलावा हम इसमें राइम स्कीम भी देखते हुए चलेंगे. राइम स्कीम क्या होती है? जब भी आप पोएम पढ़ते हैं तो पोएम में जो पोएम जिस साउंड के साथ, जिस भी स्टेंजा में जो भी लाइन जिस साउंड के साथ खत्म होती है, जैसे फर्स्ट लाइन है तो यहाँ पर ओ साउंड आई है, तो ओ साउंड के लिए हम अपनी तरफ से उसको ए दे देते हैं, एस. और उसके बाद यहाँ पे एन न साउंड आई है तो उसको हम बी दे देते हैं. उसके बाद फिर से यहाँ पर ये लाइन खत्म होती है तो यहाँ पर भी हम क्या दे देंगे? बी. उसके बाद यहाँ पे आई है ई साउंड, तो इसके लिए हम ये साउंड सब जो भी अलग अलग साउंड है उनके लिए हमने अलग अलग लेटर यूज़ किए हैं. और जहाँ पर सिमिलर साउंड आ रही है उसके लिए सिमिलर लेटर हम यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे सी यूज़ किया. उसके बाद ज्योग्राफी साउंड, वैसे वाई है बट साउंड आ रही है ई, बट हेयर बी भी यहाँ पे साउंड किसकी दे रहा है? ई. और यहाँ पर तो ए की साउंड आ रही है डे. ओके, तो इसके लिए हम दे देंगे डी. तो यहाँ पर अगर हम इसको एक साथ लिखेंगे तो ये आ जाएगा ए बी सी डी. सो दिस इज द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा. तो इस स्टेंजा की ये राइम स्कीम है, चाहे तो आप अपनी बुक पे साथ साथ लिख भी सकते हैं. ओके, सो अब हम नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं. स्टेंजा नंबर 2. व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो. सो अगेन द जो पोएट है फिर से वो एक रेटोरिकल क्वेश्चन पूछ रहा है. नॉट ही इज नॉट सीकिंग एनी आंसर, ही जस्ट क्रिएटिंग एन इंप्रेशन टू द माइंड ऑफ द रीडर्स. ठीक है. So was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love. So यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट लाइन में तो रेटोरिकल क्वेश्चन यूज हो गया. रेटोरिकल चलिए रेटोरिकल. ठीक है, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ रेटोरिकल. अब सेकेंड लाइन में आप देखेंगे यहाँ पे टी और टी का कंटिन्यूस यूज हुआ है. सेम दो वर्ड में दोनों वर्ड एक साथ टी की साउंड से शुरू हो रहे हैं. तो इससे पहले भी हमने किया था, जब सेम साउंड कंसेक्यूटिव वर्ड्स में आती है तो वहां पर कौन सा होता है, कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज होगा? यस, दैट इज अलिट्रेशन. ओके, एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार. सी नेक्स्ट, ऑल दे सीम टू बी, दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव. तो यहाँ पे लव जो है, लव दो बार यूज हुआ है. तो सेम वर्ड जब एक ही लाइन में दो बार यूज होता है तो वहां पर हम वहां पे होता है बेटा रिपीटिशन. क्या होता है? रिपीटिशन. जब वर्ड का जब रिपीट होता है तो उसको रिपीटिशन बोलेंगे. रिपीटिशन, REPETITION. What is repetition? When a single word is coming for the two or more than two times in the same line, that is called repetition. Next one, but did not act so lovingly. So यहाँ पर जो elders हैं वो they talk about love, ये प्यार के बारे में, केयर के बारे में बात करते हैं. and preached of love, और प्यार का उपदेश भी देते हैं. बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, बट वो खुद उस बात को फॉलो नहीं करते हैं. तो यहाँ पर वो कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं. तो ऐसी कोई सिचुएशन आती है जब आप कहते कुछ हो करते कुछ है, तो वहां पर कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज होती है? आयरनी. क्या यूज हुआ है? आयरनी, यानी कि विरोधाभास. ओके, सो यहाँ तक स्टेंजा 2 तक क्लियर है. अब हम स्टेंजा 3 पे चलते हैं. इन द स्टेंजा 3 लेट अस सी सेम
फिर से उन्होंने रेटोरिकल क्वेश्चन पूछा है। ओके, बड़े स्मार्ट है मार्कस नेटन, उन्होंने बार बार वो एक ये ऐसा रेटोरिकल क्वेश्चन पूछ करके रीडर्स को अपनी ओर उनको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। स्मार्टली उन्होंने पोएम को लिखा है। सो वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइंड। तो यहाँ पर उन्होंने एम और एम का बार बार दो बार यूज़ हुआ है, और यहाँ पे डब्ल्यू एंड डब्ल्यू, तो एक ही लाइन में अलग अलग साउंड का यूज़ हो रहा है। तो पहले भी दोनों में आया है, वो क्या है? एलिट्रेशन। क्या है? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन बार बार आता रहता है, आपको बस एक बार देखने की जरूरत है। अगर आप समझ में आ गया तो आप इसको ईजिली ढूंढ पाएंगे। नेक्स्ट वन, टू यूज़ विच एवर मे आई यूज़। सो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। टू यूज़, इसमें दो और पोएटिक डिवाइसेस छुपी हुई है। एक तो इजीली आप ढूंढ सकते हैं, थिंक। यस, कहाँ पे बताइए प्लीज। ये विच एंड वे, डब्ल्यू, वाह साउंड है, तो वाह साउंड कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, दैट इज एलिट्रेशन, दैट इज एलिट्रेशन। एंड देन वन मोर इज हेयर, लाइक यहाँ पर टू यूज विच एवर मे आई यूज। तो यहाँ पे क्या है बेटा, जो अगर आप देखोगे कि सेंटेंस की फॉर्मेशन यहाँ पे थोड़ी गलत है। होना क्या चाहिए था? आई चूज विच एवर वे, आई चूज विच एवर वे। तो बट यहां पर पहले क्या आ गया है? पहले वर्ब आ गई है और बाद में सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब का जो ऑर्डर है, सब्जेक्ट पहले आना था, फिर वर्ब आनी थी, फिर ऑब्जेक्ट आना था, उसको यहां पर चेंज कर दिया गया है। विच एवर वे आई चूज, विच एवर वे आई चूज, विच एवर वे आई चूज, ये वाला इस लाइन में आई चूज पहले आना था और विच एवर वे बाद में आना था। तो जब ऐसा होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब के ऑर्डर को रिवर्स कर दिया जाता है तो उसको बोला जाता है इन्वर्जन। क्या बोला जाता है? इन्वर्जन। ठीक है, उसमें पलट देते हैं वो सब्जेक्ट और वर्ब के स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट आप देखेंगे, प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल। यहां पे भी टी की साउंड हो रही है बार बार, टी। ओके, सो टी की साउंड है एंड पी की साउंड है सेम लाइन में। तो यहां पर भी आप देखते हैं कि एलिट्रेशन का यूज हुआ है। एंड वन मोर थिंग, एक और चीज है, जब आप इस लाइन को पढ़ते हैं, रीड करते हैं, प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल बट माई ओन। देखिए यहाँ पर एक ये सिंगल लाइन यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, यहाँ पे ना तो कोई पंक्चुएशन का यूज हुआ है यहाँ पर द पीपल, और ये लाइन यहाँ तक भी चली गई है। बाद में यहाँ पे इस इन द मिडल ऑफ दिस लाइन वी हैव यूज्ड सिंपल पंक्चुएशन कॉमा। सो ये जब लाइन अब अगली लाइन में भी चली जाए, उसका मीनिंग एक लाइन में क्लियर ना होके वो अगली लाइन में भी चली जाती है विदाउट एनी ग्रामेटिकल पंक्चुएशन, उसको हम बोलते हैं एनजैममेंट। यानी यहां पे लाइन खत्म नहीं हुई है, इट इज नॉट कंक्लूडेड हियर। ओके, इट गोज टू द लाइन, मीनिंग इज गोज टू द नेक्स्ट लाइन, दैट इज कॉल्ड एनजैममेंट। The definition of enjambment is a line gone to another line without any punctuation. A line gone to the another without any punctuation is called enjambment. But my own and mine alone was that the day. Here also फिर से यहाँ पे enjambment यूज हुआ है alone, और यहाँ पे पूरा के यहाँ पे खत्म हुआ है, फिर से enjambment यूज हुआ है यहाँ पे। अगर लास्ट स्टेंजा देखिए, in the fourth stanza, the poet is also used another poetic device that is called imagery, where he has used imagery in the third line. And in this phrase, an infant face. तो infant face को यहाँ पर उन्होंने as an imagery यूज किया है। इमेजरी क्या होती है? जो हमारे सेंसेस को विजुअलाइज करने के लिए, हमारे सेंस को बताने के लिए, हमारे सेंस लाइक हम अपनी आंखों से या अपना सोच करके हम किसी चीज़ को देख करके बताते हैं कि ये चीज़ कैसी है। तो लाइक एक बच्चे का इन्फेंट फेस है, न्यू बोर्न बेबी का फेस,
तो यहाँ पर पोइट बोल रहा है कि उसका जो बचपन है वो उसे एक छोटे बच्चे के फेस में वो छुप गया है, वहाँ पर वो चला गया है। ओके, वहाँ पे तो जहाँ पे जिस फेस को देख करके वो अपने बचपन को रियलाइज करता है, उसको महसूस कर पाता है। दैट्स इट। थैंक यू चिल्ड्रन। आई थिंक आप लोग वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट थी। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। आप लोग सभी जितने भी स्टेंजाज है उन स्टेंजाज के आप पोएटिक डिवाइसेस स्टेंजा वाइज लिखेंगे। ओके, विद लाइन अपनी कॉपी में आप, इट इज़ द होमवर्क फॉर यू। ओके, तो सारे पोएटिक डिवाइसेस आप लिख लेंगे। थैंक यू। अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे अलग से व्हाट्सएप पे कॉल या फिर मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।